اب کچھ سبق آمیز چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پیش کرنے والے ہوں گے ایک بڑے رسپانسبل آفیسر. اور بیسیکلی بات ہم نے کرنی ہے روڈ سیفٹی کے حوالے سے. روڈ سیفٹی سے ہر شخص کا تعلق ہے، چاہے وہ گاڑی استعمال کر رہا ہو، سڑک پر گاڑی چلا رہا ہو، یا پیدل چل کر سڑک استعمال کر رہا ہو. روڈ سیفٹی از فار آل. اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے ہم بڑے ہی کیئر لیس لوگ ہیں، اور پتہ نہیں کیوں ہیں، لیکن ہیں. ہم چالان دے دیں گے 200-400 روپے دے دیں گے، لیکن ہم اپنی عادتیں جو ہیں ان کو درست نہیں کریں گے. قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے آگہی اور ان کا احترام ہر صورت ہم پر لازم ہے. اور یہ صرف ہماری ہی جان نہیں بچاتا، یہ اوروں کی بھی جان بچاتا ہے. تو ہم اوروں کی جانوں کے بھی رسپانسبل ہوتے ہیں جب ہم سڑک پر گاڑی میں نکلتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک کیمپین چلنے لگی ہے، اور وہ کیمپین جو چل رہی ہے اس کا نام ہے نو مور وائلیشنز. تو نو مور وائلیشنز جی، ہر قسم کی برداشت جو ہے بس اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی. اب یہ کارروائی کیا ہوگی اس کے حوالے سے ہم جانیں گے. نو مور وائلیشنز کیا ہے اور کس قسم کے جو قوانین ہیں ان کا نفاذ کرانے میں مددگار ثابت ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی صاحب ہیں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے، اشفاق احمد صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. اب ہم نے دراصل ماحول جو ہے وہ سارا بنایا ہوا ہے ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے. ہم نے بات کرنی ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. اور اویس منگل والا ہمارے ساتھ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کراچی شہر کے بارے میں تو آپ ٹریفک کے بارے میں واقف ہی ہیں. جی بالکل. کیوں اویس؟ السلام علیکم اشفاق صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. لوگوں کو ذرا سکھاتے ہیں کہ کیسے ٹریفک کے حوالے سے جو اصول ہیں ان پر عمل کیے جائیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر تو ہم سب جانتے ہیں اصول وغیرہ تو ہم سب بالائے طاق رکھتے ہیں اور بس گاڑی چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ پہلے تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جو آپ لوگوں کی کیمپین ہے وہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو فار انوائٹنگ. یہ جو ہماری کیمپین ہے بیسیکلی یہ ہمارے انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس ہیں خالد محمود صاحب، ان کی ڈائریکشنز پر یہ کیمپین سٹارٹ کی ہے. اینڈ وی ہیو نیمڈ اٹ نو مور وائلیشنز. اور نو مور وائلیشنز کا انیشل فیز ہم نے موٹر ویز سے سٹارٹ کیا، اینڈ دین وی ہیو ریسنٹلی started this campaign on the national highways as well. اور اس میں یہ ہے کہ ہم کچھ اویئرنس کا اس میں پورشن ہے، لوگوں کی اویئرنس ہے ٹریفک لاز اور ٹریفک رولز کے حوالے سے، اینڈ دین a strict regime of implementation. تو جس میں موٹر ویز پہ اور ہائی ویز پہ مختلف قسم کی وائلیشنز پہ ہم سختی سے انفورسمنٹ کرنے جا رہے ہیں. یعنی اگر میں ہائی ویز کے حوالے سے بات کروں تو آپ کو اندازہ ہے کہ زیادہ تر ایکسیڈنٹس کا باعث ہمارے موٹر بائکس بنتے ہیں. تو موٹر بائکس میں ہیلمٹس کے بغیر بائک جو چلائیں گے ان کے خلاف سختی سے کیمپین ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری رائٹ لینز پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہیوی ٹریفک موو کرتی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں. اینڈ وی ول ٹرائی ٹو کیپ دا رائٹ لین اوپن فار اسمالر وہیکلز. اس کے علاوہ ہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی مدد سے لنک روڈ کے اوپر سپیڈ بریکرز بنانے جا رہے ہیں جو کہ اپروچ کرتی ہیں جی ٹی روڈ کو. اس کے علاوہ موٹر ویز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اوور سپیڈنگ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وی ہیو سٹارٹیڈ اے ریجیم آف چیزنگ دیم، اور چیز کر کے ان کو اگلی سٹریچز آن دا موٹر وے اس کو ہم ان کو ٹکٹس دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اسپیسیفائڈ اور خفیہ جگہوں پر سی ویز میں اپنے آفیسرز کھڑے کیے جن کو ہم نے سپاٹرز کا نام دیا ہے. اور سپاٹرز جو ہے تو وہ لوگوں کی موومنٹ کو آبزرو کریں گے. اوور سپیڈنگ یا غلط قسم کی اوور لوڈنگ ہوئی ہو تو سپاٹرز پھر اپنی بیٹس کو انفارم کر کے ویل ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم. تو دیز آر سم آف دی ایکٹیویٹیز وچ وی ہیو سٹارٹڈ ان دس نو مور. یعنی آپ نے جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کیمپین میں جو وائلیشن ہے اس کو کہہ دیا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. ایبسلیوٹلی ناٹ. جی بالکل بالکل صحیح ہے. آپ نے یہ وارننگ بھی دے دی ہے لوگوں کو. اچھا اب اس میں دو چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ لوگ جب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور کسی وائلیشن پر کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کی طرف سے ایک جملہ آتا ہے، اور کراچی میں تو یہ جملہ بہت آتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. تو جو تم مجھے جانتے نہیں ہو والا معاملہ ہے اس کا کیا علاج ہوگا؟ اور پھر وہ دوسرا معاملہ کیا آتا ہے کہ بہت ساری بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ جو لینڈ کروزر تو بڑے جو ویگو شیگو جو ہوتی ہیں، کیا ان کو بھی روکا جائے گا؟ کیونکہ عموماً لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کو نہیں روکتے، موٹر سائیکل والا جا رہا ہے اس کو روک لیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کا مجھے پلیز بتائیے گا. اس کا جی آپ کا ویری پرٹیننٹ کویسچن. بٹ لیکن آپ نے خود اگر موٹر وے پہ آپ کو ٹریولنگ کرنے کا اتفاق ہوا ہوگا تو ہمارے ساتھ اکثر یہ بالکل نہیں ہوتا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو. موٹر وے پہ کلچر ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے آفیسرز بڑے پولائٹ ہیں. دے ڈیل دا
commuters very politely and very with a lot of शिकायत नहीं आती। तो हमारे साथ इस किस्म की सिचुएशन बहुत कम आती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। दूसरी बात ये कि हमारी मोटरवे चूँकि अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स होती है तो ज़ाहिर बात है अक्सर लोग अपने इलाकों से बाहर ही होते हैं, तो वो जानने वाला एलिमेंट भी ज़रा कम ही होता है, जुरिसडिक्शन से निकल जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे मोटरवे में जी साबिका एक हिस्ट्री है कि वी डोंट हैव एनी डिस्टिंक्शन फॉर स्मॉल और बिग व्हीकल्स, और हमने हर वक्त जो है ना और साबिका दौरों में भी और रिसेंटली भी इवन मिनिस्टर्स को भी टिकट दिए हैं और सीनियर ऑफिसर्स को भी टिकट दिए हैं, और इसमें कोई डिस्टिंक्शन और कोई तफरीक नहीं है। तो हमारी तरफ से ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है दैट विल बी यूनिफॉर्म और सबके लिए होगा। सही। यानी ये जो सहाफ़ी वगैरह जो करते हैं कि जी अपना कार्ड दिखाया और जरा प्रिविलेजेस लेने की कोशिश की जाती है, उनको भी खबरदार कर दिया जाए। जी बिल्कुल, उनको कर दें। मोटरवे पे कोई मेहरबानी नहीं होगी जी, मोटरवे पे कोई मेहरबानी नहीं है। बेसिकली नो मोर वायलेशन इज अ वार्निंग। ये वो नहीं है कि ये मदद मांग रहे हैं कि नो मोर वायलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। नो मोर वायलेशन ये वो डंके की चोट पे नो मोर वायलेशन वाला सिलसिला है अब जो चल पड़ा है, और अल्लाह करे कि ये मोटरवे से निकलकर नेशनल हाईवेज की तरफ और दीगर शहरों में भी इसकी इंप्लीमेंटेशन हो सके। अब लोगों को हम यहाँ पर ये कह दें कि आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और आपका इम्तिहान जो है डीआईजी साहब लेंगे, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आपको हम ट्रैफिक साइंस दिखाएंगे और पता चलेगा। ये आपको आपकी इल्म के लिए भी अच्छी चीज़ है कि आपको पता चले कि कौन से ट्रैफिक साइन का आपको मतलब नहीं पता, और ड्राइविंग लाइसेंस आपका आपके हाथ में। तो ये भी सिलसिला है जो हमारे सिस्टम को मजीद बेहतर बनाएगा। डीआईजी साहब आपका इम्तिहान लेंगे, हम आपको साइन दिखाएंगे, आपने कॉल करके हमें बताना है उस साइन का मतलब क्या है। सही जवाब हो गया तो डीआईजी की वाह, और गलत जवाब हो गया तो फिर नो मोर वायलेशन। तो ये भी सारा सिलसिला है। डीआईजी साहब अब ये बताएं, कॉल्स हमें आती हैं तो हम लेते हैं, नंबर हमने चला दिया स्क्रीन पर। मोटरवे का कल्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और बड़ा ज़बरदस्त है वहाँ पे, चाहे आप ऑफिसर्स की बात करें, लोगों के ड्राइविंग एथिक्स की बात करें, पूरा एक निज़ाम है जो बन पड़ा है। उस निज़ाम को हम नेशनल हाईवेज़ की तरफ कैसे लाएंगे, और फिर बाद में शहरों में, इस्लामाबाद को आप अलग रखें क्योंकि वो तो एक अलग ही दुनिया का अलग एक शहर है, उसको पाकिस्तान में फ़िलहाल काउंट हम नहीं करते, लेकिन ट्रैफिक के वो वाला कल्चर वो कैसे हम नेशनल हाईवेज़ की तरफ लेकर आएंगे और फिर शहरों में भी कैसे उसका नफाज होगा? जी इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। हाईवेज़ पे जी हम इस कल्चर को ला रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा ये टोटली उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करके ला के हाईवेज़ पे इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, इसलिए कि वहाँ पे ट्रैफिक का कल्चर और वहाँ की जो रोड का इन्वायरमेंट है दैट इटसेल्फ इज़ वेरी डिफरेंट, और वो मतलब मोटरवे पे एक बड़ा कंट्रोल किस्म का इन्वायरमेंट है, बड़ी कंट्रोल किस्म की ट्रैफिक है, हर किस्म की व्हीकल्स को वहाँ पे परमिशन नहीं है। वेयर एज द केस इज़ डिफरेंट इन सिटीज़ एंड हाईवेज एज वेल। ये न्यूज़ पे गदा गाड़ी भी चलती है, रेड़ा भी वहाँ पे चलता है, तो वो लाना कदरे मुश्किल है। लेकिन मोटरवे का कल्चर जो कि सेम डिपार्टमेंट नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस, तो हाईवेज़ पे हम कोशिश कर रहे हैं, और शहरों के मुकाबले में कंपैरेटिवली वहाँ पे डिसिप्लिन फिर भी ज़्यादा है, और ये एक ऑन गोइंग एफर्ट है, एक ऑन गोइंग आई मीन हमारी तरफ से कोशिश है कि हम इसको बेहतर करें, लेकिन इट विल टेक टाइम। यानी ये कहना कि मोटरवे का कल्चर फौरी सिटी में आ जाएगा, फौरी ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स जो कि एक्सटेनियस फैक्टर्स है और हमारे भी कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। अशफाक साहब ये बताएं कि टेक्नोलॉजी को आप लोग अब किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इस कैंपेन में? जी हमारे पास आपने रिसेंटली प्रोक्योर किए हैं बॉडी वॉर्न कैमराज, एंड आर ऑफिसर्स इन द फील्ड वो जो है तो बॉडी वॉर्न कैमराज को यूज़ करेंगे वाइल दे आर इंटरेक्टिंग विद हेल्प्स जो लोगों को कर रहे हैं या किसी को वायलेशन में टिकट्स दे रहे हैं, तो उनकी वो तमाम एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी। एक तो इस तरीके से हम उनकी डिसिप्लिन को इंश्योर करेंगे कि लोगों के साथ कोई बदतमीज़ी का एलिमेंट ना हो, और उसमें कोई खामी वगैरह हो तो वी विल कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। उसके अलावा हमने वेरिएबल मैसेज स्क्रीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं जो हमारी अपनी गाड़ियों की बैक मिरर उस पे विंड स्क्रीन पे लगे होते हैं। दैट इज़ फॉर इंस्टेंट मैसेजेस विच वी वांट टू गिव टू द पीपल। कोई अगर ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसके आगे जो गाड़ी जा रही है उसमें वो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। उसके अलावा हमने वेरिएबल मैसेज स्क्रीन टोल प्लाजास पे भी रिसेंटली हम इंस्टॉल कर रहे हैं फॉर द जनरल पब्लिक के, उसमें कोई मैसेज हमने उनको देना होगा। उसके अलावा हमने रिसेंटली ड्रोन्स प्रोक्योर किए हैं जिसमें हम मॉनिटर करते हैं टोल प्लाजास की सिचुएशन, जब कंजेशन के इश्यूज होते हैं तो ड्रोन्स का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी किस्म के काफ़ी सारे गैजेट्स हमने रिसेंटली नेशनल हाईवे एंड मोटरवे में इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा सर, साइन बोर्ड्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा,
जैसे मतलब कहीं लिखा हुआ आ रहा है, कहीं रोड ब्लॉकेज है या ट्रैफिक कंजेशन है तो वहाँ पर लिखा हुआ है, या एंट्रेंस में एग्जैक्टली पे लिखा है। ये जो वेरिएबल मैसेज स्क्रीन के मुतालिक मैंने बताया, इस किस्म के इश्यूज अगर होंगे तो हम इस किस्म के मैसेजेस वहाँ भी डिस्प्ले करेंगे। बिल्कुल। या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वी विल इन्फॉर्म देम इन एडवांस कि आगे इतने माइलस्टोन पे एक्सीडेंट हुआ है, या रोड की कंडीशन ख़राब है, वो काम हो रहा है, तो इस किस्म के मैसेजेस हम उस पर डिस्प्ले करेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है, सही। अच्छा अशफाक साहब, ये बताइए कि अगर किसी का चालान होता है मोटरवे पर तो उसकी जो चालान अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है और आम शहरों में जो चालान अमाउंट्स होती हैं वो कम होती हैं। एक तो ये डिफरेंस क्यों है? क्या जो तयन करते हैं आप लोग वो इदारा अलग है, और उन जुर्मानों के बढ़ने से क्या जराइम कम होते हैं, ये जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं वो कम होती हैं, और अगर कम होती हैं तो हम नॉर्मल सिटीज़ में वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते? इसमें जी ये जो हमारा मोटरवे पे जो फाइन्स हैं, ये हमारा जो लॉ है जो हमें गवर्न करता है, दैट इज़ नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस ये 2000, उसके मुख्तलिफ शेड्यूल हैं। आखिर में उन शेड्यूल्स में मुख्तलिफ वायलेशंस के मुख्तलिफ फ़ाइन अमाउंट्स हैं जो कि उस वक्त की गवर्नमेंट्स की और अप्रूवल उनकी थी, और वो अभी तक स्टिल 1997 से लेकर अब तक इन फोर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अरसा 24 साल ऑलमोस्ट गुजर गए हैं, 25 साल, और उनको भी रिवाइज होने की ज़रूरत है और ये इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब फ़ाइन का अमाउंट बढ़ेगा तो उसका एक डेटरेंट इफ़ेक्ट लाजमी होगा। व्हाट आई फील इन द फील्ड कि अभी उसका वो डेटरेंट इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया है। यानी ओवर स्पीडिंग का जो फ़ाइन था, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1997 में भी 750 रुपया था, जो कि अभी भी 750 रुपया है। उस ज़माने में 750 रुपये मैटर करता था और वो थोड़ा सा पॉकेट पे उसका इम्पैक्ट आता था। अब जो है तो ट्रेंड ये है कि लोग लाहौर से चलते हैं और स्पीडिंग का इरादा करके और उन्होंने पैसे डैशबोर्ड के ऊपर रखे होते हैं कि बस ये 2 दफ़ा चालान देंगे एंड वी विल गो फास्ट। और दूसरी बात ये कि आपने बताया कि सिटीज़ में क्या तो जिस तरह जी वही मैं पूछ रहा था कि सिटीज़ में हम क्यों नहीं बढ़ाते? सिटी में जी ये बढ़ाने का ये बेसिकली ट्रैफिक का जो सिलसिला है, बेसिकली ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है और हमारा चूँकि एक फेडरल इदारा है तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल बढ़ा सकती हैं, एंड दिस इज़ फॉर देम टू लुक इनटू दिस। और प्रोविंशियल कैबिनेट्स और प्रोविंशियल जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं ये बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, और अगर वो समझते हैं कि इसका इफेक्ट नहीं हो रहा तो उनको बिल्कुल बढ़ाने चाहिए। सही। अच्छा सर, ये भी बताएं क्विकली, और जो मोटरवे पुलिस में मोटरवे पर अगर मोटरवे पर किसी का चालान होता है और 3-4 मरतबा उसका चालान होता है, तो जैसे बैरून ममालिक में हम देखते हैं पॉइंट सिस्टम होता है, तो वो आप वेरी गुड क्वेश्चन। अभी रिसेंटली और वो आपका खत्म हो जाता है थोड़े टाइम बाद, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, फिर आप दोबारा अप्लाई करें। नो मोर वायलेशन के सिलसिले में हमने ये एक रजीम भी स्टार्ट की है, और हमारे पास मोटरवे में हमने तकरीबन 80 लाख लाइसेंसेस का एक रिपोजिटरी बनाई है, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ 4 सूबों के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के लाइसेंसेस का रिकॉर्ड है, और हम जल्द ही इसको हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टार्ट कर दिए काम। और ये हर वायलेशन पे ख़ास नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, जिसका तयन भी हमारे नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस की उन शेड्यूल्स में हुआ है, और एक ख़ास हद तक 20 के करीब जो पॉइंट्स हो जाएंगे एक ख़ास पीरियड में, देन वी विल गो फॉर द सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ दिस लाइसेंस। बिल्कुल सही है। तो इस किस्म के इकदाम होंगे तो मज़ीद लोगों में इस चीज़ का डर बैठेगा कि वो एक ख्वारी होगी, वो एक बड़ा ट्रबलसम प्रोसेस होगा, जिससे दोबारा उनको गुजरना होगा, लाइनों में लगेंगे, टेस्ट देंगे और फिर अपना लाइसेंस जो है वो ले सकेंगे। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त कैंपेन है, नो मोर वायलेशंस। और अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, वायलेशंस ना कीजिए, और सेफ्टी से और जो एक अच्छे तरीके से गाड़ी, ज़िम्मेदार शहरी की तरह गाड़ी चलाइए। और जो पैदल भी चल रहा है उसको भी ध्यान देना है कि वो भी अपने दाएँ बाएँ देखे जब वो रोड क्रॉस कर रहा है। अंधाधुंध हम चल पड़ते हैं बगैर देखे और हमें लगता है कि भाई उसकी गलती है, सड़क पे क्यों आ रहा है गाड़ी लेके, ये तो मेरी रोड है। तो ऐसा सिलसिला, ऐसा एटीट्यूड जो है इसको रद्द करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त निकाला। ऑल द बेस्ट फॉर द कैंपेन, नो मोर वायलेशंस।